महाभारत में लिखा है कि अर्जुन वहाँ खड़े थे और मिक्स्ड इमोशंस, क्योंकि शुरुआत में तो जेलसी थी. Namaste everyone, welcome to another episode of the Humans of Mahabharat with my sister Bhavna Didi and me, Amish. Humans of Mahabharat में हम महाभारत के कई पात्रों का शोध करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं. आज हम सीखेंगे एकलव्य से. एकलव्य से तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है अमीश. निषाद राज के बेटे थे वो. निषाद ज़्यादा फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ही वॉज द प्रिंस ऑफ द निषाद्स. करेक्ट. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल एक्चुअली टेल हिम एज. लेकिन ये क्रिटिकल एडिशन में भी यही था. क्रिटिकल एडिशन में तो ही वाज अ प्रिंस. तो क्रिटिकल एडिशन में है कि सभा पर्व में जब राजा युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होता है तो उसमें एकलव्य राजा स्वरूप आते हैं. बिकॉज बाय देन एकलव्य राजा बन गए थे. जो फेमस इंसिडेंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो इंसिडेंट है आदि पर्व में. जब एकलव्य प्रिंस थे, राइट. और सभा पर्व में जब वो यज्ञ में आते हैं तो वो राजा स्वरूप आते हैं. निषाद राज बन गए थे ऑलरेडी. निषाद राज. He was already the king. He was already the king of the Nishads. Yeah. It's very different from what people and ये critical edition में है. हाँ. It's not a लोक कथा. वो एक्चुअली Interesting. अमर चित्र कथा ने बहुत ही डिस्टॉर्ट किया है. असल विलन ऑफ द पीस अमर चित्र कथा में समटाइम्स उसमें भी I mean they were it was very good what अमर चित्र कथा did, but हाँ वो शूर्पणखा को ग्रीन स्किन्ड और हॉर्न्स के तरह दिखा दिया when actually है ना. she was very beautiful and very fashionable. I know. Actually. हाँ. But coming back तो एकलव्य वो his father was the king of the Nishads. और वो खुद बाद में राजा बन गए. इनफैक्ट पुराणों में जिक्र किया जाता है कि यू रिमेम्बर राजा नल दमयंती फेम के. तो वो भी निषाद राज थे और वो एकलव्य के पूर्वज थे. ये क्रिटिकल एडिशन में नहीं है, ये पुराणों में है. हाँ. उनके एकलव्य के पिताजी का नाम था हिरण्यधनुष. हाँ. लेकिन हाँ ठीक है, क्रिटिकल एडिशन में यस इज शोन एज दिस जो आप सही कह रही हैं. लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि हिरण्यधनुष जी वो जनरल थे एम्परर जरासंध के. एम्परर जरासंध हु वाज द एम्परर ऑफ मगध एंड अपेरेंटली द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ दैट इरा, मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दैट इरा, जो आज का जो बिहार है. तो उनके जनरल थे हिरण्यधनुष. ये भी एक कहानी है. हाँ. तो राजा भी तो जनरल हो सकते हैं. मतलब राजा जो शल्व थे वो तो चैरियटर थे ना कुरुक्षेत्र में, है ना. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड आई विल एक्सेप्ट. तो बोथ सच हो सकते हैं. हाँ. दोनों सच हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक झूठ और एक सच. ठीक है. तो ये थी उनके पूर्वजों की कहानी. उनके लेगेसी, उनके हिस्ट्री, उनके फैमिली की कहानी. Renowned industrialist Mr. Harshvardhan Neotia on the Mahabharat. Meet Eklavya, the forest prince, whose name still stands for determination, self-learning, and deep respect for one's teacher. He was the son of Hiranyadhanus, leader of the Nishad tribe. Some stories say his father served as a general in Emperor Jarasandh's army. From a young age, Eklavya dreamed of becoming the greatest archer in the world and to learn from none other than Dronacharya, the royal teacher of the Kuru princes. But when Eklavya approached Drona, he was turned away. Some say it was because Drona had promised to make Arjuna his best pupil. Others say it was because of Eklavya's birth, that he didn't belong to the royal class. Whatever the reason, he was denied the chance to learn. But Eklavya didn't give up. He went deep into the forest, made a clay statue of Dronacharya, and began training before it every single day, as if his teacher were truly there. He practiced in silence with devotion and discipline until he became an archer of unmatched skill. Some say
greater than Arjun himself. When Dronacharya later discovered this, he was astonished and perhaps afraid that his promise to Arjun would be broken. So he asked Eklavya for Guru Dakshina, the teacher's fee. And what he asked for was unthinkable. Eklavya's right thumb, knowing it would destroy his ability to shoot. And yet, without anger, without hesitation, Eklavya bowed, cut off his thumb, and placed it at his Guru's feet. He didn't protest, he didn't question the fairness of it. His devotion, even in loss, became a legend. But Eklavya's story didn't end there. He learned to shoot with his remaining fingers, proving that true mastery lies not just in skill, but in spirit. In today's world, Eklavya lives in every self-taught learner. The student watching free lessons online because formal education is out of reach. The professional who learns by trial and error. The dreamer who keeps going despite rejection. He reminds us, greatness doesn't come from privilege or approval. It comes from persistence, humility, and an unbreakable hunger to learn. Eklavya, the silent archer, shows us that even when the world closes its door, the forest is full of open skies. लेकिन एकलव्य की कहानी क्या है? तो अभी एकलव्य की कहानी तो एकलव्य की कहानी जो है वो महाभारत में आदि पर्व में है। तो एकलव्य जब छोटे थे, बच्चे थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनको धनुष बाण का बहुत शौक था, बहुत ही शौक था। वो सीखना चाहते थे, जानते थे कि सर्वश्रेष्ठ जो गुरु हैं शस्त्र विद्या के, वो तो उस ज़माने में गुरु द्रोण थे। तो एकलव्य गुरु द्रोण के पास गए और बोला, गुरुदेव मुझे आप धनुष बाण सिखाइए। मैं तो बोलूँगी मे बी गुरु द्रोण ने बोला, आई एम बिजी। नहीं, ये क्रिटिकल एडिशन में ये नहीं। ये लोक कथा में भी नहीं है। नहीं। लेकिन गुरु द्रोण ने बोला, और वो भी एक तरह से जायज़ होगा भाई कि वो कॉन्ट्रैक्टेड थे कुरु राज्य में कि कुरु जो राजकुमार थे उनके टीचर थे वो। तो ये हो गया ना कि कैथीड्रल स्कूल की कोई टीचर है और कैंपियन स्कूल से कोई चला जाए और बोले आप हमें सिखाइए, तो बोलेंगे कि नहीं मैं तो कैथीड्रल स्कूल की टीचर हूँ, तो मैं कैथीड्रल स्कूल के बच्चों को पढ़ाऊंगी, है ना। तो क्रिटिकल एडिशन में गुरु द्रोण ने बोला कि मैं कुरु राज्य का अध्यापक हूँ, उन्हें सिखाऊंगा, उन्हें का गुरु हूँ, उन्हें ही सिखा सकता हूँ, कुरु राजकुमारों को ही सिखा सकता हूँ। लेकिन उसमें एक और बात भी थी जो क्रिटिकल एडिशन में भी है कि उन्होंने अर्जुन को ज़बान दी थी कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। He'd given his promise to अर्जुन। और वो देख सकते थे कि एकलव्य में इतना हुनर है कि ही में भी ये क्रिटिकल एडिशन में है। अमीश, ये भी है कि हाँ फेवरेटिज्म बाद में आया, लेकिन जब एकलव्य आए थे गुरु द्रोण के पास तो उस समय गुरु द्रोण को नहीं मालूम था कि वो इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, वो तो बाद में आया, कहानी जब आगे बढ़ी तो ये बोलना पड़ेगा। उस समय गुरु द्रोण नहीं जानते थे कि एकलव्य में इज सो टैलेंटेड। एनीवे, व्हाटएवर मे बी हिज मोटिव्स, गुरु द्रोण ने बोला कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। बट इंस्पिरेशन बड़ी पावरफुल चीज़ होती है ना, और एकलव्य वॉज इंस्पायर्ड बाय गुरु द्रोण। तो जंगल में एक क्लियरिंग में गुरु द्रोण एकलव्य ने गुरु द्रोण का पुतला बनाया, मिट्टी का, क्ले का एक पुतला बनाया, और फिर रोज़ सुबह एकलव्य आके वहाँ अपने गुरु के पुतले को नमस्कार करके वो खुद प्रैक्टिस करने लगे। इंस्पिरेशन पुतले का, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एकलव्य वो सेल्फ टॉट, अपने आप को सिखाया। अब हुआ ये कि एक दिन एकलव्य सुबह आए, अपने पुतले स्वरूप गुरु को नमस्कार किया और प्रैक्टिस चालू करे। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था।
तो उनका ध्यान धनुष बाण में ध्यान बहुत ज़रूरी होता है, तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो जो कुत्ते की बाकिंग की जो साउंड थी उस तरफ एकलव्य ने बाणों की बिना देखे, ओके, बिकॉज कुत्ता दिख नहीं रहा था, बाघ सुनाई दे रही थी, तो बिना देखे एकलव्य ने बाणों की बौछार करी। और वो जो कुत्ता था पूरे इर्द गिर्द सारे बाण उसके मुंह में जाके लग गए, इतने हल्के से कि कुत्ते को दर्द भी ना हुआ, लेकिन मुंह खुला का खुला रह गया, मुंह बंद नहीं कर पा रहा, मुंह बंद नहीं कर पा रहा, भौंकना बंद हो गया। अब एकलव्य तो अपने प्रैक्टिस में लग गए, लेकिन वो जो कुत्ता था, ही वॉज द हंटिंग हाउंड ऑफ द कौरव्स एंड द पांडव्स। ओके, अब वो कुत्ता गया वापस अपने कैंप में, तो देख करके सब हक्का बक्का कि हे भगवान, ये बाण किसने चलाए। अर्जुन ने देखा, बच्चा था, ईर्ष्या हुई, है ना, और स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु ने ही इम्प्रेशन दे दिया था सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, लेकिन जिस आर्चर ने ये करके दिखाया वो तो अर्जुन क्लियरली इस समय तो नहीं कर पाता। गुरु द्रोण एकदम हक्के बक्के हो गए, तो वो उस क्लियरिंग की तरफ गए कि ये बाण कहाँ से आए थे। अब जब क्लियरिंग में घुसे तो देखे खुद का पुतला है, और यहाँ देखा तो एकलव्य धनुष बाण की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गुरु द्रोण ने पूछा कि किसने सिखाया है तुम्हें। तो एकलव्य ने बोला कि गुरुदेव, आपसे सीखा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु तो आप हैं, और पुतले की तरफ इशारा किया। गुरु द्रोण शस्त्र ज्ञान और आर्ट ऑफ वॉरफेयर में तो बहुत ही महान टीचर थे, लेकिन बोलना पड़ेगा दिल के बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटा दिल, और बहुत ही क्रूर दिल इंसान भी बोला जा सकता है, क्योंकि कोई ये करे जो उन्होंने किया, ये तो बहुत ही अति हो गई। क्योंकि उनने एकलव्य, वो बालक था एकलव्य, बोला कि मैं अगर गुरु हूँ तुम्हारा तो गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। एकलव्य ने बोला एनीथिंग, आप बोलिए, हाजिर है। और गुरु द्रोण ने बोला कि मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। सब के सब ये जो कौरव और पांडव ये सब वहाँ खड़े थे, बच्चे खड़े थे, एकलव्य खुद बच्चा था, और एक पल के लिए ही डिड नॉट हेजिटेट, अपनी तलवार निकाली, अपना राइट अंगूठा काट करके अपने सो कॉल्ड गुरु के चरणों में रख दिया, नोइंग फुल वेल व्हाट दिस मेंट, क्योंकि धनुष बाण कोई क्या चलाएगा बिना थम के। करेक्ट, इट वाज सो क्रूल। और महाभारत में लिखा है कि अर्जुन वहाँ खड़े थे, और मिक्स्ड इमोशंस, क्योंकि शुरुआत में तो जेलसी थी, फिर हॉरर कि ये गुरु क्या कर रहे हैं, साथ साथ में शर्म, शेम, साथ साथ में शायद थोड़ा रिलीफ, है ना। ह्यूमन हार्ट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और ये सब उन सब ने खड़े हुए देखा, और गुरु द्रोण ने ये मांगा, एकलव्य ने दिया, और गुरु द्रोण वहाँ से चले गए। ये आदि पर्व में ये कहानी है। वेरी वेरी क्रूल। और मैं ये सोच रहा था जब आप बात कर रही थी, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैंने सोचा कि अभी तक तो मैं सोचता था कि शायद गुरु द्रोण ने ये इसलिए किया ताकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना रहे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को मतलब ही प्रॉमिस्ड हिम, ये वचन दिया था। लेकिन क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि गुरु द्रोण का एक लॉन्ग टर्म प्लान भी था, वो कौरवों और पांडवों को ट्रेन करके इकट्ठा करके, बिकॉज ही वुड बी देयर गुरु, एंड एज गुरु दक्षिणा ही वांटेड देम टू गो एंड डिफीट राजा ध्रुपद, his childhood enemy, his friend turned enemy। तो क्या उस कारण, क्योंकि वो चाहते थे कि पांडव और कौरव लॉयल रहें, तो वो दिखाना चाहते थे कि मैंने तुम्हें वचन दिया तो मैंने आई डिलीवर्ड, तो अभी फिर तुम मेरा ये भी हो सकता है। तो मैं एक बात बोलूं, अमीश, दाल में सिर्फ जीरा नहीं होता है, हींग भी होती
है कि नहीं, नमक भी होता है, ओके, थोड़ा कभी कभी टमाटर भी होता है और दाल में दाल भी होती है। तो एक इवेंट में एक बिहेवियर के एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला ह्यूमन हार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। Correct. तो एक तरफ द्रोण के दिल में बदले की भावना थी कि वो बदला चाहते थे, बिल्कुल सही है। एक तरफ ये भी था कि फेवरेटिज्म, टीचर्स फेवरेटिज्म करते हैं, माँ बाप भी कभी कभी फेवरेटिज्म करते हैं। हाँ, बच्चों में भेदभाव करते हैं। बच्चों में भेदभाव करते हैं और टीचर्स तो डेफिनेटली करते हैं। कोई ना कोई टीचर्स पेट होता है और टीचर्स पेट को 5 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं और जो टीचर को नाखुश करते हैं 5 मार्क कम मिल जाते हैं, है ना। नहीं, लेकिन 5 मार्क कम देना और अंगूठा मारना, ये मतलब अति हो गई, क्रूअल्टी की, फेवरेटिज्म की अति है। हाँ, फेवरेटिज्म की अति है। और ये मैं बोलूँगी कि कुछ हद तक मुझे ये पूरी कहानी एक पर्सनल लेवल पे ह्यूमन इमोशंस के बारे में, ये जानती हूँ मैं कि एक पॉलिटिकल लेवल में एक कलर दे दिया गया है। वैसे एकलव्य कास्ट हायरार्की के तो बाहर ही थे, वो तो प्रिंस हाँ, थे। हाँ, वो तो निषाद थे, हाँ, निषाद, वो प्रिंस थे, हाँ, anyway, तो और वो प्रिंस थे। तो ऐसा नहीं है कि वो एक किसी, और ऐसे प्रिंस जो जिन्होंने राज्यसभा मतलब अटेंड भी किया था। हाँ, हाँ, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, महान राजा थे। हाँ, उस क्योंकि समय तक वो महान राजा बन गए। उन्हें न्योता नहीं मिलता अगर उन्हें राजा के का दर्जा नहीं दिया गया होता। सही तो है। अश्वमेध यज्ञ में थोड़ी न्योता मिलता उन्हें बाद में, हाँ, of बट course, ठीक है, एक इस समय पॉलिटिकल कलर दे दिया जाता है, हाँ, वो अलग बात है, लेकिन उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, नाइंसाफी ये हुई। एकदम क्लियर है। बिल्कुल, एकदम clear बिल्कुल, है। बिल्कुल। और क्रूरता द्रोणाचार्य की तरफ से हाँ, अति। बट ये भी है अमीश, पावर ऑफ इंस्पिरेशन ना। You know, it is beautiful to be inspired. Have you ever been inspired by anyone? Yeah, so many. so often and so many. Yeah. And you know, inspired होने का एक जादू ये है कि जिससे इंस्पायर होते हैं वो इंस्पायर करना नहीं चाहता है, वो जो भी है वो तो एक्सीलेंस की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं। और हम इंस्पायर्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम भी एक्सेल करना चाहते हैं, है ना। तो इंस्पिरेशन एक मैजिक है। शायद वो जानते भी ना हो हाँ, कि हम इंस्पायर हो गए, लेकिन हम इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ, वैसे ये भी है कि एकलव्य इंस्पायर हुए एक क्रूर इंसान से, क्योंकि हाँ, ही वॉज अ गुड टीचर ऑफ शस्त्र ज्ञान, लेकिन ही वॉज स्मॉल माइंडेड एंड हार्ड हार्टेड, है ना। आई मीन, तो क्या बोला जा ऐसा सकता है। क्या ऐसा होता है कि कई बार मतलब जिससे हम इंस्पायर हो जाते हैं, क्या ऐसा ही हो जाता है कि वी बिकम ब्लाइंड टू देयर फॉल्ट्स? लाइक जैसे हम प्रेम करने लगते हैं, वी बिकम ब्लाइंड टू देयर फॉल्ट्स। ऐसा इससे सिर्फ हम अच्छाइयाँ देख रहे हैं, वी लूज आवर सेंस ऑफ, भाई ये बात मानूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। इंस्पायर हो गए थे, ठीक है, आप गुरु हैं, आप जो भी कहेंगे मैं मान लूँगा। शायद वो गलत ही, अधर्म भी क्यों ना हो, ये तो अधर्म था। अंगूठा मांगना तो अधर्म था। महाभारत की यही तो ग्रेटेस्ट सीख है कि देयर इज नो वन हु इज ऑल बैड एंड देयर इज नो वन हु इज ऑल गुड। हर एक इंसान में हर एक इंसान के बहुत रंग होते हैं और हर एक इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और अच्छाइयों और बुराइयों में भी अच्छाइयाँ, हमारे अंदर की अच्छाइयाँ हमारे अंदर के पांडव हैं और हमारी अंदर की जो बुराइयाँ अनेक हैं, सैकड़ों हैं, वो कौरव हैं, है ना। करेक्ट। और ये युद्ध चलता रहा, पांडवों को जीतना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि कई लोग जो एकलव्य की कहानी जानते हैं वो शायद एकलव्य के बचपन, एकलव्य के पूर्वजों के बारे में नहीं जानते। जैसा हम जो अभी चर्चा जो कर रहे थे, पॉलिटिकल कलर जो दिया जाता है, क्योंकि लोग एकलव्य के एंसेस्टर्स को जानते नहीं है। हाँ। भाई नल दमयंती के वंशज थे वो। हाँ। तो लेकिन वो इंसिडेंट का नॉलेज है, पीछे का नहीं है। हाँ। नॉलेज, आगे का भी नॉलेज नहीं है कि एकलव्य के साथ हुआ क्या इसके बाद। जब उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया गुरु दक्षिणा में, हाँ। गुरु द्रोणाचार्य को, हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ?
हाँ, तो पता ये भी ओरिजिनल महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। क्रिटिकल एडिशन। हाँ क्रिटिकल एडिशन में, वैसे क्रिटिकल एडिशन में मेंशन्ड है अब जो मैं बताने वाली हूँ, और उसका एक्सपेंशन पुराणों और लोक कथाओं में है, हरिवंश में भी है। हरिवंश में भी है। तो ये है कि पहले महाभारत के बारे में बात की जाए कि उद्योग पर्व, उद्योग पर्व में कहा जाता है कि एकलव्य का वध श्री कृष्ण के हाथों में हुआ अल्टीमेटली। ठीक है, तो सभा पर्व में तो जिक्र है कि अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्ठिर के में एकलव्य आए थे दीदी, as a king। अश्वमेध की राजसूया। ओ सॉरी राजसूय यज्ञ, हाँ, सॉरी ओके, हाँ। हाँ, तो राजसूय यज्ञ में एकलव्य आए थे और वो राजा रूपी आए थे। अब जो उद्योग पर्व है वहाँ लिखा गया है कि अंत में श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य का वध हुआ। अब वो कैसे हुआ, उसकी क्या कहानी है? तो कहानी ये है कि एकलव्य का दाएं हाथ का अंगूठा तो गुरु द्रोण ने बहुत ही क्रूरता से ले लिया था, लेकिन एकलव्य उसके बावजूद वो सीखे, धनुर्विद्या सीखे और शस्त्र ज्ञान सीखे वो, और ही बिकेम अ ग्रेट वॉरियर, ही बिकेम अ ग्रेट वॉरियर। और जब जरासंध, ही ऑल्सो, यू आर राइट, जो एकलव्य के पिताजी थे वो जरासंध के आर्मी में थे, है ना? हिरण्य धनुष। हाँ, तो एकलव्य का भी इंटरेस्टिंग, हिरण्य धनुष लिटरली मींस गोल्डन बो। हाँ, इंटरेस्टिंग नो? इंटरेस्टिंग। हाँ, हाँ, या एकलव्य के पिताजी। या हाँ। तो एकलव्य ऑल्सो वॉज एन एलाई ऑफ जरासंध। अब जब श्री कृष्ण ने जरासंध को मार डाला, हाँ, है ना? मतलब पांडवों के द्वारा। हाँ, हाँ, तो एकलव्य विद हिज आर्मी अटैक्ड द्वारका। ओके, तो ये कहानी जो है ये पुराणों में विस्तार से लिखी गई है। इवन लोक कथाएं, अमीश, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, इवन भील और गोंड कहानियों में इसका विस्तार से जिक्र है कि एकलव्य अपनी सेना के साथ उनने द्वारका पर अटैक किया। अब श्री कृष्ण उस समय वहाँ थे नहीं, तो बलराम थे श्री कृष्ण के बड़े भाई। युद्ध हुआ और बलराम ने एकलव्य को बहुत ही घायल कर दिया। ही वॉज वुंडेड, बैडली वुंडेड, एंड एकलव्य व्हेन ही वॉज बैडली वुंडेड वो गए एक द्वारका के पास एक आइलैंड में, वहाँ गए। अब श्री कृष्ण वापस आए और श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया। नाउ ऑन हिज डेथ बेड एकलव्य और श्री कृष्ण का शास्त्रार्थ हुआ। इट्स अ वेरी वेरी डीप शास्त्रार्थ जो इट गोज फ्रॉम द पर्सनल टू द सेक्रेड। पर्सनली एकलव्य ने अपनी दिल की चिंताएं व्यक्त की श्री कृष्ण को कि उनकी माँ का क्या होगा। अब वो जा रहे हैं, हिज मदर वाज वेरी अटैक्ड, very attached to him, very who will attached, take care of his mother, who will take care of his mother, क्योंकि बाप तो चले गए थे, अब मैं भी जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने पहले तो कंसोल किया कि डू नॉट वरी, योर मदर इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और आफ्टर दैट श्री कृष्ण एंड एकलव्य टॉक्ड अबाउट डेथ, कंपैशन, लाइफ, फॉरगिवनेस, है ना, कि माफ़ी कैसे दी जाए, काइंडनेस क्या होती है ह्यूमन हार्ट की, और शास्त्र मोक्ष का मतलब क्या है, मौत का मतलब क्या है। तो ये एक शास्त्रार्थ हुआ, बहुत ही सुंदर दोनों के बीच। ये एकलव्य से इतनी अच्छी चीज़ें को सीखने को मिलती हैं कि एक तो गुरु अगर सिखाए ही नहीं फिर भी आप सीख सकते हैं, बस इंस्पिरेशन चाहिए। और आज के तारीख में तो एआई, इंटरनेट का ज़माना है, आप खुद सीख सकते हैं। दूसरी बात, जब आपके साथ अन्याय भी हो, और कौन ऐसा इंसान है जिसके साथ अन्याय नहीं हुआ है, हर किसी के साथ होता है, फिर भी उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, नेवर सीइंग हिमसेल्फ एज अ विक्टिम, इसीलिए वो दोबारा एक बहुत अच्छे धनुर्धर बने, राजा बने, एक और उनका जीवन कई हद तक सफल रहा। हाँ। लेकिन
गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आप सोच सकते हैं कि भाई उन्होंने जो गलतियां की उसका फल तो उन्हें मिला, उनके बच्चे को भी मिला, उनके बेटे को भी मिला। तो ये शायद हम एकलव्य से सीख सकते हैं कि अगर चरित्र स्ट्रांग हो, सशक्त हो, और आप अपने आप को विक्टिम के नज़रिए से ना देखें, आपके ऊपर जितना भी अन्याय हो फिर भी आप अपने आप को विक्टिम के नज़रिए से ना देखें, एक एम्पावर्ड आदमी की तरह देखें अपनी ज़िंदगी को, तो आप कितने आगे बढ़ सकते हैं। शायद ये हम एकलव्य से सीख सकते हैं। एक और चीज़ अमीश, कि गुरु द्रोण से भी ये सीख लें कि कामयाबी अपने मेरिट पर मिल सकती है, किसी और को नीचे खींच करके कामयाबी हासिल करना इज नॉट रियल कामयाबी ना, है ना। ऐसी भी क्या कामयाबी जिसमें हमने किसी और को नीचे खींच लिया। कामयाबी नहीं, कामयाबी। सॉरी, बैड जोक, बहुत ही बुरा जोक था। लेकिन और अंत में जो शास्त्रार्थ जो हुआ कृष्ण भगवान के साथ कि, और ये महाभारत में क्रिटिकल एडिशन में है कि अगर कृष्ण भगवान आपके साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो आप में कुछ तो बात होगी, और किसी के साथ शास्त्रार्थ थोड़ी ना करते हैं। तो कुछ तो खास, बहुत खास बात थी। शास्त्रार्थ तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी नहीं किया था, सिर्फ सिखाया था। है ना। एकदम सही, एकदम सही। बहुत सीखा जा सकता है एकलव्य से। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पड़ाव है ये इस एपिसोड को समाप्त करने का। अगर आपको एकलव्य के ऊपर इस एपिसोड से आप कुछ सीखे, आपको आनंद मिला, तो प्लीज़ जो नीचे जो लाइक सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ह्यूमंस ऑफ महाभारत लॉन्चेस। तब तक भावना दीदी और मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।